When I was a young boy, I grew with a song, which is Psalm 23. और जवान एक युवक में था तब मैं एक गीत के साथ मैं पला बड़ा और वो है भजन संहिता 23वां अध्याय. Not young, when I was a child, when I was probably 4 years, 5 years old. बालकपन की उम्र में 3, 4, 5 की उम्र में. Even today, that song makes a great value for me. और आज भी वो जो वचन है उसको जब मैं गाता हूँ, उन गीतों को जब मैं गाता हूँ तो बहुत It मूल्य makes a रखता है deep impact. और बहुत गहरा वो It प्रभाव डालता helps है. me a lot. And today I want to share that Jesus is our shepherd. और आज वही मैं बांटना चाहूँगा कि यीशु हमारा चरवाहा है. Because today God wants to say this truth to every one of you. क्योंकि परमेश्वर ये सच्चाई आप इसे हर एक से बांटना चाहता है. God is your shepherd. परमेश्वर आपका चरवाहा है. Okay? And I want to quote a very beautiful and a very sweet word which is in the Bible. और बहुत ही सुंदर और मधुर एक वचन जो बाइबल में है वो मैं बांटना चाहूँगा. I think you should all know it by heart. मुझे लगता है कि ये सब आपको ऐसे ही याद होना चाहिए. It is John chapter 10 verse 11. यूहन्ना 10:11. You can easily remember. आप John सब याद करते होंगे. 10. यूहन्ना 11. 10:11. Okay? Can we read it together? हम साथ में क्या इसे पढ़ेंगे? I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. I think none of you said this. मुझे लगता है आप में से किसी ने बोला नहीं है. Chalo, loudly. जोर से आप I कहेंगे. am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Can we do it once more? क्या हम फिर एक बार करेंगे? I am the good shepherd. The good shepherd gives his life for the sheep. Jesus Christ is the good shepherd. यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है. And he gives his life for the sheep. और वो अपना प्राण अपने भेड़ के लिए देता है. Okay? The greatest need for any human being is a shepherd. सबसे बड़ी जरूरत किसी भी इंसान के लिए एक चरवाहे का है. Or a caretaker. या उसे संभालने वाला कोई. Or a father. या तो उनका पिता. Or a mother. या एक माता. That is why when a child is born, 2 caretakers are given for one child. और इसी कारण जब एक बच्चा जन्म लेता है उसे संभालने के लिए 2 लोग दिए जाते हैं. Because without the shepherd or the caretaker, the sheep will be scattered. क्योंकि अगर उसके जीवन में वो चरवाहा और उसे संभालने वाले ये दोनों व्यक्ति ना हो तो वो जो भेड़ है वो बिखर जाएंगे. They become scattered. वो बिखर जाते हैं. Now scattered sheep is always a prey or a victim to a negative animal which is there around, prowling around. तो ये जो बिखरे हुए भेड़ है वो हमेशा एक पीड़ित बन जाते हैं वहां पर जो दुष्ट जानवर है. Scattered sheep is always abused. बिखरे हुए जो भेड़ है उनका हमेशा शोषण किया जाता है. That's why when you lose your father or mother, there is a greater chance for you to become an abused child. और इसीलिए अगर आपके जीवन में अगर आपके माता या पिता की देखरेख नहीं है तो ये बहुत अधिकतर देखा जाता है कि आप शोषित एक बालक बनते हो. Abusers, they are looking for shepherdless sheep. जो शोषण करने वाले लोग हैं वो इसी की खोज में रहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई चरवाहा नहीं. We all have this great need of ours. हम सबके जीवन में ये बहुत बड़ी एक जरूरत है जो हमारे जीवन में है. That's why you see in villages, if you go to certain places where we can see a lot of sheep going around, you will always find a shepherd there. और इसलिए अगर गांव में आपने देखा होगा बहुत सारी भेड़ बकरियां वहां चल रही होती है वहां उनके बीच एक चरवाहा जरूर होता है. You always understand, sheep needs a shepherd. इस बात को हमेशा समझे आप
कि भेड़ को चरवाहे की जरूरत है। A cow or a bull doesn't need a shepherd. एक चाहे वहां पर गाय हो या बैल हो, उनको कोई चरवाहे की जरूरत नहीं है। What the people they do, they let loose the cow or the bull in the morning, they go around and they come. और गाय और बैल को देखे, उनको खुला छोड़ देते हैं, वो पूरा दिन सुबह वो जाते हैं, चरते हैं और वापस वो आ जाते हैं। That's why you see cows on the roads in many cities in India. कई शहरों में भारत में हम देखेंगे रास्ते पर ही बहुत सारे गाय घूम रहे हैं। They are not scared. उनको डर नहीं लगता, They are not scattered. वो बिखरे हुए नहीं हैं, They will find their way. वो अपना रास्ता निकाल लेते They will हैं, go home in the night. वो रात को वापस अपने घर लौट But a जाते हैं। sheep लेकिन जो भेड़ है cannot go home in the night. वो रात They- को they अपना lose घर पे the वापस sheep, नहीं लौट the पाते, shepherd. वो अपना रास्ता खो लेते हैं। Every one of us, we are a sheep. हम में से हर एक भेड़ के समान है, We are a sheep. हम भेड़ हैं। Without the shepherd, you will lose your way. अगर चरवाहा नहीं तो आप अपना रास्ते को खो लोगे। Huh? Tell your neighbor, you are a sheep. You need the shepherd. अपने पड़ोसी से कहे तुम एक भेड़ हो और तुम्हें चरवाहे की जरूरत है। That's why, many young people, they are scattered. They don't know what to do. और इसलिए कई सारे जवान लोग को देखो, वो बिखरे हुए हैं, वो नहीं जानते कि क्या करना है। Many families are scattered. They don't know what to do. कई सारे परिवार बिखरे हुए हैं, वो नहीं जानते क्या करना है। Why? क्यों? Because they are sheep. क्योंकि Their वो mind, भेड़ के they समान है। have a nature that need a shepherd. और उनके मन में ये एक स्वभाव ही है उनका कि उनको एक चरवाहे की So जरूरत it है। is important that you find Jesus Christ as your shepherd. तो ये महत्वपूर्ण है कि आप यीशु मसीह को अपने चरवाहे की तौर पर पालें, And you also find somebody who can shepherd you in this world. और आप उन्हें भी पाले जो इस दुनिया में आपकी देखरेख करेंगे, आपके चरवाहा बनेंगे। Always be in a place where there is a shepherd. हमेशा उसी स्थान में रहना जहां पे चरवाहा मौजूद है, Because a shepherd is very much required for every one of us. क्योंकि हम में से हर एक के जीवन में एक चरवाहे की हमें जरूरत है। But there are some people, they are hirelings. लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो किराए पे लिए गए लोग हैं। John 10:12. Can we read John यूहन्ना 10:12? 10वां अध्याय 12वां वचन कोई पढ़े। But a hireling, we'll read it together. हम साथ इसे पढ़ेंगे। यूहन्ना 10:12। But a hireling who is not a shepherd, one who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf catches the sheep and scatters them. Hireling, और वहां पर जो किराए पे लिया गया मजदूर, they are motivated by money. उनकी प्रेरणा केवल पैसा ही है। They are motivated by name. उन्हें जो नाम उन्हें दिया जाता है उससे वो प्रेरणा मिलती They है, are motivated by fame. और जो उनकी पहुंच बनती है, जो उनके नाम बनता जाता है, वही उनकी प्रेरणा बनती They है। move where there is money. वो उस दिशा में जाते हैं जहां पे पैसा है। You can't follow a hireling. आप ऐसे एक किराए पे लिया गया हुआ मजदूर के पीछे आप नहीं चल पाओगे, Because a hireling, always his welfare comes before the welfare of the sheep. क्योंकि जो किराए पे लिया गया मजदूर है वो हमेशा अपने बारे में, अपनी भलाई के बारे में पहले सोचेगा, बाद में वो भेड़ के बारे When में। a wolf comes, he will flee for his life. अगर जब भेड़िया आता है तो पहले अपनी जान को बचाने के लिए वो दौड़ता है। He will not think, hey, I have to protect these sheep. वो ये नहीं सोचेगा कि मुझे इन भेड़ों की रक्षा करनी है, He will protect himself. वो अपने आप की रक्षा करेगा। See, today we need shepherd. आज हमें ऐसे चरवाहों की जरूरत है, That's why Jesus said, I am the good shepherd. और इसलिए यीशु ने कहा मैं ही अच्छा चरवाहा The हूँ। good shepherd gives his life for the sheep. और जो अच्छा चरवाहा है वो अपना प्राण अपने भेड़ के लिए देता है। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, क्या कहा? क्या कहा? I am the good shepherd. मैं ही Come on, अच्छा let us say, चरवाहा I हूँ। am आप the बोले। good shepherd. The good shepherd gives his life for the एक sheep. अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण दे देता है। Can we repeat? क्या हम फिर से दोहराएंगे? That's why Jesus said, I और am इसलिए the यीशु ने good कहा shepherd. मैं अच्छा चरवाहा हूँ, Good shepherd और एक gives अच्छा his चरवाहा life अपने for the भेड़ों के sheep. लिए अपनी प्राण दे देता है। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने I कहा am the good मैं shepherd. अच्छा चरवाहा हूँ, and the good shepherd. और जो Hey, अच्छा come on, चरवाहा है, come आप on, कहे come on. I am, come on. I मैं am अच्छा the चरवाहा good हूँ, shepherd. और एक अच्छा Good चरवाहा। shepherd gives his life for the sheep. You need a good shepherd.
आपको एक अच्छे चरवाहे की जरूरत है। You don't need a hireling. आपको एक किराए पे लिए गए है वो मजदूर की जरूरत नहीं है। Don't follow a hireling. आप एक किराए पे लिए गए मजदूर के पीछे नहीं चलना। If you are following the hireling, probably a day will come where he will run for his life. अगर आप ऐसे किराए पर जो मजदूर लिए गए हैं उनके पीछे आप चलते हो तो ऐसा एक दिन आ सकता है जहां पे वो अपनी जान बचा के भाग जाए। Yeah. Hireling always works for money. और जो किराए पे लिया गया मजदूर है वो हमेशा केवल पैसों के लिए काम करता है। So he is working for better salary. वो बेहतर तनख्वाह मिले इसके लिए वो काम कर रहा है। He is not working for better pasture for the sheep. और वो इसीलिए काम नहीं कर रहा कि अच्छे चरने के लिए जगह मिले अपने भेड़ के लिए। He is not worried about his sheep. He is worried about himself. वो भेड़ के बारे में चिंता नहीं करता बल्कि अपने बारे में चिंता करता है। John chapter 10 verse 13. यूहन्ना 10:13। The hireling flees because he is a hireling and does not care about the sheep. वो इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। Care. उसको कोई A चिंता नहीं। shepherd cares for the sheep. एक चरवाहा अपने भेड़ों के लिए सोचता है, उसे संभालता Tell है। your neighbor, the shepherd अपने पड़ोसी से कहे एक चरवाहा cares for the sheep. अपने भेड़ों के लिए चिंता करता है। Now who need care? और वो किसके लिए वो चिंता करता है? Huh? Babies need care. क्या छोटे बालकों को ऐसे उनकी देखरेख करने की जरूरत है? Huh? I tell you, even teenagers need care. मैं आपसे कहता हूं जो मध्यम वर्गीय बच्चे हैं उनको भी देखरेख की जरूरत Young पड़ती है। adults need care. और जो जवान बड़े हैं वो जवान लोग हैं उनको भी देखरेख Even की जरूरत fathers पड़ती है। and mothers need care. माता पिताओं को भी देखरेख की जरूरत पड़ती है। Even in your old age, you need care. आपके वृद्ध उम्र पर भी आपको देखरेख की जरूरत पड़ती है। Sheep needs care. और जो भेड़ है उनको देखरेख की जरूरत There is पड़ती no है। age group which is above care. Every age group needs care. कोई ऐसा उम्र नहीं है जहां पे आपको देखरेख की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक उम्र के व्यक्ति को देखरेख की जरूरत पड़ती है। Only a shepherd will care for you. केवल एक चरवाहा ही आपकी देखरेख करेगा। Never ever follow a hireling. कभी भी एक भाड़े पर लिए गए मजदूर के पीछे नहीं Follow चलना। a shepherd आप चरवाहे के पीछे चले who will care for you. जो आपके लिए चिंता करेगा। Okay? The next category is the wolf. और दूसरा जो विभाग है वो है भेड़िया। Now, wolf. भेड़िया Now, wolf is very dangerous, people. एक भेड़िया बहुत ही खतरनाक हो सकता है। Wolf scatters you, और जो भेड़िया है वो आपको तितर बितर कर देगा and wolf ultimately eats you up. और वो आखिर में आपको निगल ही जाएगा। Hireling will not eat you; he will run away for himself. और जो भाड़े पे लिया गया मजदूर है वो भाग जाएगा अपनी जान बचाकर। But a wolf will eat you. और जो भेड़िया है वो आपको निगल जाएगा। हाँ, भेड़िया आपको खा लेगा. It will eat you. So today, my friends, we need to be safe from the wolves which are going to come. तो हमें आज ये जो भेड़िए हैं उनसे हमें बचकर रहना है जो जरूर आएंगे। Wolves will come. क्या वो भेड़िया आएंगे? Positive confession. Positive confession लोग के लिए भी wolf जरूर आएगा. Wolf नहीं आएगा बोलेगा भी वो आएगा. जो सकारात्मक घोषणाएं करते हैं उनके लिए भी ये भेड़िया जरूर आएगा। Wolf will come. ये भेड़िया जरूर आएगा। Why? क्यों? On this earth, wolf will come. इस पृथ्वी पर भेड़िए जरूर आएंगे। We are not living in heaven. हम स्वर्ग में नहीं जी रहे हैं। So definitely there are people who are like wolves. और निश्चित तौर पे ऐसे लोग हैं जो भेड़ियों के समान है। There are some problems like wolves. कुछ परेशानियां ऐसी है जो भेड़ियों के समान है। It can come and destroy you. वो आएगा और आपका नाश कर देगा। Yes. Wolf scatters the sheep. भेड़िया जो है वो भेड़ को तितर बितर कर देता है। You know, sheep is a food to the wolf. और भेड़ियों के लिए ये जो भेड़ है वो उनका भोजन है। I'll tell you something. Many people are actually feeding on you. और कई सारे लोग आपको अपना भोजन समझकर खा रहे हैं। Many of you are in certain associations. That associations are actually eating you.
और आप में से कई लोग ऐसे कुछ रिश्तों में हैं जो सचमुच वो जो रिश्ते हैं वो आपको खा रहे हैं, They are not benefiting you. वो आपको उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। Some of you may work in organizations which are actually consuming you, आप में- consuming your youth. आप में से कुछ लोग ऐसी संस्थाओं में काम कर रहे हैं जो सचमुच वो संस्थाएं आपको खा रहे हैं, आपकी जवानी के समय को खा रहे हैं। I was talking to a young girl from a call center. एक कॉल सेंटर से एक जवान लड़की थी, उससे मैं बात कर रहा था। She was saying, I have back to back calls for 5-6 hours non-stop. और वो कह रही थी कि 5 से 6 घंटों तक निरंतर मुझे फोन उठाना पड़ता है, कॉल आते रहते हैं Back to back. और निरंतर वो आते रहते हैं। When she is calling, when she is talking to one customer, that next customer is already waiting. और जब वो Beep, 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 beep. It's coming like that. और जब वो एक कस्टमर से बात कर रही होती है, अगले कस्टमर वहां पर राह देख रहा है इसके लिए, और वहां पर वो फोन की घंटी बज रही है, बीप बीप बीप। They give 20 minutes break for us to eat or do something, and again we have to come in the seat. और बीच में हमें 20 मिनट का एक छूट मिलती है जहां पे हम कुछ खाकर तुरंत वापस आते हैं और हमें फिर काम पे लगना पड़ता है। At the end of the day, she's exhausted. और दिन के अंत में वो पूरी तरीके से थक चुकी है। She has lost her youth in that job. और उस नौकरी में उसने अपने जवानपन के समय को खो दिया है। Her job is the wolf in her life. और वो जो नौकरी है वो उसके जीवन में एक भेड़िए के समान है। There are many bosses who are like wolves in your life. कई सारे बॉसेस ऐसे हैं जो आपके जीवन में एक भेड़िए के समान है। Religion is a wolf in our life. धर्म हमारे जीवन में एक भेड़िए के समान आता है। There are many neighbors like wolves in our lives. कई पड़ोसी ऐसे होते हैं जो हमारे जीवन में एक भेड़िए के समान होते हैं। Wolves will come. और भेड़िए जरूर आएंगे। That's why Jesus is saying, I am the good shepherd. और इसलिए यीशु The कह good रहा है shepherd कि मैं ही will अच्छा give his चरवाहा life हूं, for the और एक अच्छा चरवाहा अपना प्राण What अपने Jesus भेड़ के लिए said. देगा। That's why Jesus said, और इसलिए यीशु ने कहा, I am मैं the good shepherd. अच्छा Come चरवाहा on, हूं। everybody. आप I सब am कहे, the good shepherd. मैं एक अच्छा चरवाहा The good shepherd gives his हूं। और life. एक अच्छा चरवाहा अपने प्राण अपने भेड़ के He लिए is देगा। your shepherd. वो आपका चरवाहा है, He is your shepherd. वो आपका चरवाहा He है। is not a hireling. और वो भाड़े पे लिया गया कोई Hireling मजदूर will run नहीं। away. और मजदूर तो भाग जाएगा। Wolf will come to consume you. और जब भेड़िया आपको निगलने के लिए आता है, So none of you should be in a place where you are dealing with hirelings and wolves. और आप में से कोई ऐसे स्थान में ना रहे जहां पे आप ऐसे भाड़े पर लिए गए हुए मजदूरों के साथ काम कर रहे हो Today या I- ऐसे भेड़ियों के अधीन हो। Today I want to tell every one of you, you have a good shepherd. आज आप में से हर एक से कहना चाहूंगा कि आपके पास एक अच्छा चरवाहा। Hirelings are there in the world. Wolves are there in the world. इस दुनिया में ऐसे भाड़े पर लिए गए हुए मजदूर है, But there ऐसे is a good भेड़िए shepherd. है, लेकिन एक अच्छा चरवाहा भी है। There is a good shepherd. एक अच्छा चरवाहा भी Who है। is that good shepherd? और वो अच्छा चरवाहा कौन है? Who is the, ask your neighbor, who is the good अपने shepherd? पड़ोसी से पूछो कि अच्छा चरवाहा कौन है? Who is the good shepherd? Jesus Christ is the good shepherd. और यीशु मसीह Is a good shepherd. एक अच्छा चरवाहा है। Yeah. Many young people, they're Great. all the time on the phone. कई जवान लोग जो है वो हमेशा अपने फोन के साथ लगे हुए रहते हैं। They're already under a wolf. वो एक भेड़िए के अधीन आ चुके हैं। Already under a wolf. वो भेड़िए के अधीन आ चुके हैं। Huh? So you come, you get out of this आप इस मोबाइल के ताकत से बाहर निकल जाएं and come to the shepherd who will give his life for you. और आप उस चरवाहे के पास आए जिसने अपनी प्राण आपके लिए दे दी है। Many of these channels, because we are in the world, they are not okay channels. They are और okay time. कई सारे चैनल्स ऐसे यहाँ पर दिखते हैं क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, वो ठीक चैनल नहीं है। Yeah. It will take you through adventurous movies. और ऐसे एडवेंचर से भरे हुए मूवीज में वो लेकर जाएगा। How many of you like adventurous movies? एडवेंचरस मूवीज कितने लोग को पसंद है? I like only certain types of movies. One is adventurous movies I like. Today I will teach you how the shepherd actually takes you through adventure.
आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार एक चरवाहा आपको ऐसे साहसिक जगहों से लेकर जाता है। Okay, adventure is not in the movie. Movie, everybody is acting. और जो मूवी है, फिल्म है, उसमें तो सारे no वहां पर adventure. केवल एक्टिंग कर रहे हैं, There is no adventure. वहां पर कोई साहसिक काम नहीं हो रहा। When I was a young boy, I thought that Gabbar Singh is a enemy of the whole humanity. और जब मैं जवान लड़का था तो मुझे लगा जो गब्बर सिंह था वो सारी इंसानियत के खिलाफ है। Then I went somewhere and I saw a photograph. और कहीं तो मैं गया था और वहां पर मैंने एक फोटो देखा। In that photograph, Amitabh Bachchan and Dharmendra and that Amjad Khan, Gabbar Singh, they are all having coffee. और उस फोटो में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और अमजद खान जो है वो साथ मिलकर कॉफी पी रहे हैं, They are laughing. वो हंस रहे खेल रहे हैं It looks like they are all friends. और ऐसा लग रहा था कि वो तीनों अच्छे दोस्त हैं। I got the greatest confusion of life. और मैं सबसे बड़ी गड़बड़ी में पड़ गया अपने जीवन में। I thought, how they can have coffee with this guy? और मैंने सोचा कि इस आदमी के साथ कॉफी कैसे पी सकते हो। Later I understood they were all acting. फिर मैंने समझा कि ये तो सब एक्टिंग कर रहे थे। Friends, दोस्त, let not the wolves consume you. ये भेड़िए आपको निगल ना जाए, You have to be with a shepherd. आपको उस चरवाहे के साथ ही रहना है। Wolves can cheat you. और भेड़िए आपको धोखा दे सकते हैं। Wolves don't come to you like a wolf. जो भेड़िए हैं वो भेड़ियों के समान नहीं आते आपके They सामने, come in another shape and style and वो beauty. दूसरे ही so that अन्य you रूपरेखा won't में understand. आपके सामने आते हैं। Okay? And wolves love darkness. और ये जो भेड़िए हैं उनको अंधकार पसंद है, Because darkness is a place where wolves can attack you. क्योंकि अंधकार ऐसा जगह है जहां पे ये भेड़िए आप पर घात कर सकते हैं। This earth has a lot of places of darkness. और इस पृथ्वी पे कई सारे ऐसे जगह है जो अंधकार से भरे हुए हैं। Say darkness. आप कहे अंधकार, Say darkness. आप कहे अंधकार। Darkness is a place where wolves are lurking. अंधकार ऐसी एक जगह है जहां पे कई सारे भेड़िए घूम रहे हैं। Yes, darkness is a place where wolves are lurking. अंधकार ऐसी जगह है जहां भेड़िए घूम रहे हैं, Because darkness is a place they can attack you. क्योंकि अंधकार ऐसी जगह है जहां पर वो आप पर घात कर सकते हैं। Let's turn to Psalm 74:20. भजन संहिता 74 उसका 20वां वचन। Psalm 74:20. Tell your neighbor I'm learning something. अपने पड़ोसी से कहे मैं कुछ सीख रहा हूं, I'm setting my right life. I मैं am अपनी setting जिंदगी को my सही रास्ते पर ला life रहा हूं। right. 74:20. The dark places of the earth are full of horns of cruelty. Dark places are full of cruelty. अंधेरे जो स्थान है वो अत्याचार से, क्रूरता से भरे गए हैं। Yeah, right. These places, wolves are haunting, wolves are coming. और ये जो जगह है यहाँ पर ऐसे बहुत ही खतरनाक ऐसे भेड़िए घूम रहे। Jesus said, I am the good shepherd. यीशु ने कहा कि मैं ही अच्छा चरवाहा हूं। When I say Jesus said, you all will say, I am the good shepherd. जब भी मैं कहूंगा कि यीशु ने कहा तो आप सभी को कहना है साथ मिलकर कि मैं अच्छा That's चरवाहा why हूं। when Jesus said, और इसलिए जब यीशु ने I कहा, am the good shepherd, and the good shepherd will give his life. for और एक अच्छा चरवाहा अपनी प्राण देता है भेड़ के लिए। Hallelujah. What a glorious gospel. कितना महिमा से भरा हुआ सुसमाचार है। The wolf will always, wait at what is darkness? ये अंधकार क्या है? Darkness is not dark. अंधकार मतलब ऐसे नहीं कि यहाँ पे जैसे अंधेरा छा Darkness गया is not dark place. हो। और अंधकार का मतलब ये नहीं क्योंकि अंधेरे से भरा हुआ जगह। Darkness is a place where there is no light. और अंधकार ऐसी जगह है जहां पे कोई ज्योति नहीं है। There is no knowledge. What is light? Knowledge is light. और ये ज्योति क्या है? वहां पर बुद्धि की बातें। This Bible is the light and the lamp to your feet. और ये बाइबल जो है ये एक दिया और दीपक के समान है आपके That's पैरों why के God लिए। gave us a book. और इसीलिए परमेश्वर ने ये किताब को हमें दिया है। Knowledge. Knowledge is inside this book. और इस किताब के अंदर बुद्धि की बातें हैं। Wolf wants you to be without knowledge. और भेड़िया चाहता है कि आप बिना बुद्धि के रहे। God wants you educated in the book. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप इस किताब के द्वारा आप शिक्षित बने। That's why we are
the most important, every Sunday we teach the word. और इसलिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हम परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। Now let us turn to Psalm 23. अब हम भजन संहिता 23वें अध्याय को Let us see देखेंगे। what the shepherd is going to take us into. हम देखेंगे कि किस प्रकार चरवाहा हमें आगे ले चलता है। See, when you have the shepherd, not only he will save you from the sheep and the hireling and all the other things, he will also make your life adventurous. और जब आपके जीवन में एक चरवाहा होगा, वो ना केवल आपको इस भेड़िए से या इस मजदूरों से आपको बचाए रखेगा, बल्कि आपके जीवन में बहुत ही साहसिक जगहों पे आपको लेकर जाएगा वो। See, many of us, we want adventure. हम में से हर एक ऐसे हैं जो हम कुछ साहसिक जीवन चाहते हैं। One of the byword of the young people today, in today's world, is boring. और एक शब्द जो हमेशा जवान लोग आज के दिन में कहते हैं कि मैं बहुत बोर्ड हो गया हूँ। If your life is boring, you have not even seen what life is. अगर आपकी जिंदगी बोरिंग है तो आपने सचमुच जीवन को देखा ही नहीं है। Boring. You know what they want? They want some movie where somebody will come and slap them. और वो That हमेशा is क्या what they are चाहते हैं? telling me. वो ऐसे फिल्म देखना चाहते हैं जहां पे कोई आके किसी को थप्पड़ मारे। I'll tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ। I had a student. एक विद्यार्थी मेरा ऐसा था। He had a very abusive father. और उसका पिता जो है बहुत शोषण करने वाला व्यक्ति था। He used to beat him black and blue. और बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ मारपीट करता था। One day he died. एक दिन वो मर गया। And this boy, और ये जो लड़का था, when he grew up into a young man, वो जब एक जवान व्यक्ति बना, he used to listen to voices on his head और वो ऐसी आवाजों को अपने दिमाग में सुनता था, because he was an abused son. क्योंकि वो ऐसे शोषित एक बेटा था। He didn't know how to silence those voices. वो नहीं जानता था कि इन आवाजों को कैसे चुप कराएं। So he bought a sound system तो उसने ऐसे एक साउंड सिस्टम खरीद ली and he used to keep it in his bedroom और अपने बेडरूम में उसे रखता था and he used to loudly play. और जोर से उसे सुनता था। Everybody was disturbed. हर एक लोग जो उसके साथ रहते थे वो The परेशान whole थे। neighborhood was disturbed. उसके आस पड़ोस वाले सारे परेशान थे। But this boy had no other way to silence that voice. लेकिन इस लड़के के पास और कोई रास्ता ही नहीं था उन आवाजों को वो चुप कर पाए। And he was sitting in my classroom, वो मेरी कक्षा में बैठा हुआ the था। most disturbed boy. सबसे अधिक वहां परेशानी करने वाला लड़का था। The day he met Jesus, लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात यीशु से हुई, Jesus silenced all the voices. यीशु ने हर एक उस आवाजों को चुप करा दिया। I tell you something. मैं आपसे कुछ कहता हूँ, Today there are young boys and girls. आज जवान लड़के और लड़कियां यहाँ पर They हैं have a troubled childhood. और उनके बालकपन की जो अवस्था थी बहुत परेशानियों से गुजरी They है have abusive environments, और ऐसे शोषण करने वाले कई सारी परिस्थितियां थी which makes them, drives them to do many things to silence the trouble they are going through. और वो ऐसे उनको प्रेरणा देती है कि ऐसे कामों को करे ताकि इन आवाजों को चुप कर पाए। The only person who can लेकिन एक ही silence those व्यक्ति voices is जो- Jesus Christ. जो इन आवाजों को चुप करा सकता है वो यीशु मसीह है। In fact, Jesus Christ is actually an adventure. और सचमुच यीशु मसीह के साथ जीवन जो है वो एक साहस से भरा हुआ Okay, जीवन है। if you go behind Jesus, अगर आप यीशु के पीछे चलते हो He will take care of lot of things which otherwise is disturbed in your life. वो कई सारी चीजों को संभाल लेता है जो अगर उसके साथ नहीं हो तो वो आपको परेशान कर सकता है। Psalm 23 verse 1. भजन संहिता 23वां अध्याय पहला वचन। Verse 1. पहला वचन, The Lord is my shepherd. I shall not want. Can we read it together? क्या हम इसे साथ पढ़ेंगे? The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for his name's sake. Yeah, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff will comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. See, first, when you make him a shepherd, he will make you to lie down in green pastures and still waters. जब पहले आप उसे अपना चरवाहा बनाओगे तो वो आपको ऐसे हरी चराइयों के किनारे और शांत पानी के साथ बिठा देता है. See, our life has lot of turbulence. हमारे जीवन में इतनी अधिक परेशानियां तूफान उठती हैं. Our life is shaking like this. हमारा जीवन ऐसे जोर से हिल रहा हो मानो. Like BST bus. बीएसटी बस में जगह अगर आप बैठे हो तो आपने महसूस किया Sometimes होगा. they shake everything out of us. और वो इस तरीके से आपको हिला देता है कि आपके अंदर से सब बाहर निकल जाता है. Life is more jolting. और लेकिन जिंदगी जो है इससे भी अधिक खतरनाक है. We don't know, many times we don't know what to do with this life. कई बार हम नहीं जानते कि क्या करें इस जीवन के साथ. Shepherd will take you to green pastures, लेकिन एक अच्छा चरवाहा आपको हरी चराइयों से ले चलेगा, still waters. शांत पानी के किनारे He ले will चलेगा. first calm your life. वो आपके जीवन को पहले तो शांत कर देगा. He will bring calmness in your life. वो आपके जीवन में एक शांति लेकर आएगा. He makes you to lie down in green pastures. When I went to Srinagar one day, I saw what green pastures are. I tell you, for acres and acres, for miles and miles, I could see only green grass. और यहाँ पर जो लिखा गया है कि हरी चराइयों के साथ बिठाता है. जब मैं श्रीनगर गया था वहां पर देखा कई सारे लंबे 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 रास्तों पर पूरे वहां पर हरी चराइयां फैली हुई थी. Yeah. And the sheep were sleeping in those grasses. और जो भेड़ जो थे वहां पर उन घास पर विश्राम कर रहे थे. I tell you, God will make you to do that same thing. और मैं आपसे कहता हूं कि परमेश्वर आपको इसी तरह ले चलेगा. And He restores your soul. और वो आपके प्राण को फिर से ले आता है. See, what is actually disturbed in us is our soul. सचमुच हमारे प्राण में कौन सी ऐसी बात है जो ऐसे गड़बड़ी में है. Soul is your mind. ये प्राण जो है ये आपका मन है. He restores your soul. वो उसमें एक नई जान लेकर आता है. Yes, He restores it. वो आपको फिर से नया बनाता है. He makes it new. उसे नया बनाता है. That's why, when you come to Jesus, you have no hurts. और इसलिए जब आप यीशु के पास आते हो तो आपकी कोई ऐसी बुरी चोट नहीं रहती है. Many people, you come to Jesus with a lot of hurt in your heart. आप जब यीशु के पास आते हो तो आपके जीवन में बहुत सारी चोट रहती है. After you are in Jesus, you have no hurt. लेकिन आप फिर यीशु के साथ चलना शुरू करते हो फिर कोई ऐसी चोट रहती नहीं Yeah, है. so you won't have any hurt. और कोई चोट रहती ही नहीं है. Very beautiful life. ये बहुत ही सुंदर जीवन बन You will जाता है. have no problems with anyone. और किसी के साथ भी कोई भी परेशानी नहीं होती है. They say anything, you don't worry about that. और कोई कुछ भी क्यों ना कहे आपको कोई चिंता ही नहीं होती. So what happens is, He restores your soul. और क्या होता है कि वो आपके प्राण को फिर नया बना देता है. Please understand, इस this बात is को the work समझे. of a shepherd. ये एक चरवाहे का काम है. Many people don't allow the shepherd to restore their soul. कई लोग चरवाहे को आपके प्राण को फिर नया बनाने की अनुमति नहीं देते. No, I am not going to forgive. I am not going to forgive. नहीं, मैं क्षमा नहीं करूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं. Your soul is damaged. आपके प्राण पर वहां पर चोट लगी है. God restores your soul. लेकिन परमेश्वर उसे फिर नया बना देता That's है. why you can never see a believer who is hurt. इसलिए कभी भी आप एक विश्वासी को नहीं देख पाओगे जो चोट खाया हुआ हो. Tell your neighbor, you cannot see a believer who is अपने पड़ोसी से कहे तुम ऐसे एक विश्वासी को नहीं मिलोगे जो चोट खाया हुआ है. Okay? Believers will not be hurt at all. विश्वासी जन जो है वो ऐसे चोट नहीं खाते. Why? He क्यों? restored my soul. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे प्राण को फिर नया बना दिया People है. will all the time say something wrong about you. और शायद लोग आपके बारे में निरंतर गलत बातें कर रहे हैं. So that's why you don't see hurt people in house of prayer. और इसीलिए इस हाउस ऑफ प्रेयर में आप चोट खाए हुए लोग नहीं दिखते. See, all beautiful smile. Mothers are a reflection of God. मैंने आपसे ये कहा कि माँ जो है वो परमेश्वर को दर्शाते हैं. Fathers are reflection of God. In the पिताएं same जो way, है- pastors are also a reflection of. पिताएं जो है वो भी परमेश्वर को दर्शाते हैं. उसी तरह पासबान जो है वो परमेश्वर को दर्शाते हैं. If you have found anything good with me, that is because God is good. अगर आपने मेरे साथ कोई कुछ भी भली चीजें को पाया है वो इस कारण है क्योंकि परमेश्वर भला है.
After this, then the adventure starts. इसके पश्चात ही सारी साहसिक बातें शुरू First, होती he हैं। will set your life, set your soul. पहले तो वो आपके जीवन को सही करता है, आपके प्राण को नया बना देता है। उसके बाद देख 4. चौथा वचन देखिए, I walk through the valley of shadow of death. You want adventure? क्या आप साहसिक बातें चाहते हो? एडवेंचर में बोरिंग ना, कितना बोरिंग है, तुम सबको सिखाएगा वो. Now it is a valley of shadow of death. और यहाँ पर घोर अंधकार से भरी हुई एक तराई से आप गुजर रहे हो। This is a real adventure. ये सचमुच के एक साहसिक काम इधर है। मोबाइल के अंदर एडवेंचर ही नहीं है. The real adventure is adventure called life. Adventure called life. और जीवन जो है उसमें सचमुच साहसिक काम होते हैं। Huh? Very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। The adventure, the life itself will become an adventure. आपका जीवन ही साहसिकता से भर जाएगा। Many people who are seeking adventure here, they never enter any adventure. They will become servants in the world. और बहुत से लोग जो इस मोबाइल में साहस को ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं पाएंगे, बल्कि इस दुनिया में नौकर बनते रह जाएंगे। They are future servants. वो भविष्य के नौकर है। But if you follow the shepherd, future adventures. लेकिन अगर चरवाहे के पीछे आप चलो तो आप भविष्य के See, साहसिक this काम करने guy वाले लोग is बनेंगे। walking in the valley. और in ये the व्यक्ति देखो जो darkness, in death. वो ऐसी तराई से होकर गुजर रहा है जो अंधकार से भरा हो, मृत्यु से भरा हुआ हो। It's full of darkness. वो अंधकार से भरा हुआ है And it is going down and down and down. और वो नीचे 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 होते जा रहा है। Suddenly he is thinking, I am going to die. अचानक से वो सोच रहा है कि मैं तो मरने वाला हूं। There is only one thing. he लेकिन can- एक ही चीज है, Shepherd of my soul. और मेरे प्राण के चरवाहे, My shepherd. और My eyes are on him. मेरे चरवाहे, मेरी आंखें तुझ पर है। He will go like that. वो इस तरीके से जाएगा। Many times we had to go like that. कई बार हमें इसी तरह जाना पड़ता है। And every time you go like that, there is a great increase and promotion in your life. और हमेशा जब हम इस तरीके से जाते हैं तो एक बढ़ोतरी हमारे जीवन में आती है, एक प्रगति हमारे जीवन में आती है। See, it says, I will fear no evil. और यहाँ पे लिखा है कि मैं कोई भी हानि से नहीं डरूंगा। Yes. Through the adventure, I go to a place of glory. और उस साहसिकता से भरे हुए समय से गुजर कर मैं महिमा की तरफ बढ़ूंगा। See, many of us, we wonder, why such problem? हमें से कई ये सोचते हैं कि ऐसे परेशानी क्यों आ रही है, Why such challenge? ऐसी चुनौती क्यों आ रही है, Why such an impossibility is in front of me? ऐसे असंभव परिस्थिति मेरे सामने क्यों है। But let me tell you, लेकिन मैं आपसे impossibility will become a possibility. असंभव परिस्थितियां आपके लिए संभव बन जाएगी। If you don't have impossibilities in your life, probably you are not in the right place. अगर आपके जीवन में कोई असंभव परिस्थिति नहीं है तो शायद आप अपने जीवन में सही स्थान पे नहीं हो। Life is an adventure. जिंदगी ही एक साहसिकता से भरी हुई जीवन है। Crazy things God will accomplish through every one of you. और आप ऐसे हर एक के सामने ऐसे पागलपन से भरे हुए परिस्थिति आएगी। Can one of you buy a plot of 1 acre in Juhu? क्या आप में से एक उठकर जुहू में 1 एकड़ की जमीन खरीद सकते हो? Adventure शुरू होगा. साहसिकता से भरी हुई काम शुरू Try हो, it. कोशिश कर देखिए Then real adventure will come. तो सचमुच की साहसिकता से भरे हुए Many काम of you are आएंगे। already smiling, right? आप में से कई तो Smile. मुस्कुरा रहे हैं। Don't seek adventure here. आप Seek यहाँ adventure in पर your life. यहाँ पर साहस के काम को ना ढूंढे बल्कि अपने जीवन में ढूंढे। We will buy a land. हम एक जमीन को खरीदेंगे, We will build a church. हम एक कलीसिया बांधेंगे We will build a school. और एक स्कूल को बांधेंगे We will buy the school. और उस स्कूल को भी खरीदेंगे। Life is adventure. और ये जिंदगी ही एक साहसिकता से भरी हुई adventure. काम है। But if you don't have any vision, लेकिन अगर कोई दर्शन आपके जीवन में नहीं है, if you are busy following hirelings, अगर आप इस चीज में व्यक्त समय बिता रहे हो probably जहां you पे are, आप किराए पे ले हुए मजदूरों के पीछे चल रहे हो, probably you are on the way to meet your wolf. शायद आप अपने भेड़िए को मुलाकात करने के लिए जा रहे हो। Maybe hireling is very nice, sweet man. और वो जो मजदूर है शायद बहुत अच्छा व्यक्ति है, मधुर बातें करता है, Maybe he engages you very well. शायद वो आपके साथ अच्छी लेन देन करता है, He entertains you very well. This वो is a आपका hireling. मनोरंजन बहुत अच्छा करता है। Wolf आएगा ना,
लेकिन जब भेड़िया आ जाता है, तुम्हारा मोबाइल काम नहीं करेगा, आपका मोबाइल काम करना बंद तुम्हारा कर, मोबाइल काम नहीं करेगा ना, हायरलिंग भाग जाएगा, क्योंकि वो पैसा के लिए करता है, पैसा के लिए नाचता है, पैसा के लिए रिलेशनशिप करता है, वो भाग जाएगा. So you will be caught. The real life is full of adventure. We actually live, visionless life. That's why our life becomes dull and boring. और सचमुच हम बिना कोई दर्शन के जीवन को जब बिताते हैं तो हमारी जीवन जो है वो ऐसी एकदम बिना कोई रुचि के बातें ऐसे होती रहती हैं. Take up an adventure. एक साहसिकता से भरी हुई काम को ले, Take up an adventure. एक साहसिकता से भरी हुई बात को God ले. will do wonders in your life. परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे. Take up an adventure. एक ऐसे साहसिकता से भरी हुई काम Do करें, something which is crazy. कुछ ऐसे काम करें जो पागलपन से भरा हुआ हो, Do something which is not possible. और कुछ असंभव बातों को आप करें. Yeah. हाँ, Do things. ऐसे काम करें Only with God I can do it. जो केवल परमेश्वर आपके जीवन में कर सकता है. Why not you, every one of you get up and do something only God can do. क्यों ना आप में से सब खड़े हो जाए और आप ऐसे कुछ काम करें जो केवल परमेश्वर ही कर सकता हो. Sometimes it may go down and down and down. ऐसा हो सकता है कि ये नीचे नीचे और नीचे जा रहा है. It can be dark, dark, dark. शायद अंधकार अंधकार और अंधकार में भरते दिख रहा है. Everybody will say तुम मर जाएगा इसमें. और सब यही कहेंगे, पर क्या होगा? See the next word. अगले वचन को देखो, Verse 5. 5वां वचन. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है. तूने मेरे सिर पर तेल मला है. मेरा कटोरा उमड़ रहा है. God actually has a glorious future for every one of you. परमेश्वर सचमुच आप में से हर एक के लिए ऐसे महिमा से भरा हुआ एक भविष्य रखा है. He has a glorious future for everyone. महिमा से भरा हुआ एक भविष्य. He is going to prepare glorious place. और वो महिमा से भरा हुआ एक स्थान आपके लिए तैयार कर He रहा is है. a place of prepared. He is prepared a place. और ये जगह को उसने तैयार कर दिया है. Okay? Definitely your enemies will not like that. निश्चित तौर पे आपके जो दुश्मन है वो उसे पसंद नहीं करेंगे. It may be devil, it may be human, it may be political party. I don't know. शायद ये शैतान हो या कोई अन्य व्यक्ति हो या कोई राजनीतिक दल हो. Who has prepared? किसने तैयारी की है? Who has prepared? किसने आपके लिए तैयारी My की है? shepherd has prepared. मेरे चरवाहे ने तैयारी की है. My shepherd has prepared. मेरे चरवाहे ने तैयारी की है. A beautiful table of glory. एक सुंदर मेज जो महिमा से भरा हो. Okay, my cup will run over. और मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा. Okay, my cup will run over. मेरा कटोरा जरूर उमड़ कर भर Verse रहेगा. 6. 6वां वचन. Can we read it together? हम साथ इसे पढ़ेंगे. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. I will dwell in the house of the Lord forever. What a privilege we have. ये कैसा सौभाग्य है कि हम परमेश्वर के साथ सर्वदा वास My करेंगे. friends, there are times when you go through a valley of shadow of death. दोस्तों, कई बार हम ऐसे रास्ते से गुजरते हैं जो अंधकार और मृत्यु से भरी तराई हो. That is the biggest adventure we can ever have. ये सबसे बड़ी साहसिकता की काम है. Definitely he will take us to a broad place निश्चित तौर पर एक चौड़े स्थान पर वो हमें ले जाता है, where we will be glorified along with the Father and Son. जहां पे अपने पिताओं के साथ आपका भी महिमा किया जाएगा. He anoints our head with oil. वो हमारे सर पर तेल मलता है. What a beautiful thing. कैसा सौभाग्य है. I tell you, our life on earth is not an experiment. It is a glorious walk with God. और मैं आपको ये बताता हूं कि हमारी जिंदगी जो इस दुनिया में है वो कोई शोध नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ चलना है. If you are having a issue in your life, who is with me? Who will be my shepherd?
Jesus will be your shepherd. अगर आपके जीवन में आप परेशानी झेल रहे हो, आप ये सोच रहे हो कौन मेरे साथ रहेगा, कौन मेरी मदद करेगा, तो यीशु आपका चरवाहा है। He cares for you वो आपकी चिंता करता है, more than your parents, आपके माता पिता से भी बढ़कर more than anyone. He और cares for you. किसी अन्य व्यक्ति से बढ़कर वो आपके बारे में सोचता है। He's so careful with you. वो संभाल कर आपको रखता है। He will never leave you nor forsake. वो कभी अभी आपको छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। He gives his life for वो us. अपने प्राण को हमारे लिए दे देता He है। is a good shepherd. वो अच्छा चरवाहा है। Ultimately, I want to say there is only one good shepherd in the entire universe. और आखिर में मैं यही भी कहूंगा कि पूरे भूमंडल में केवल एक ही अच्छा चरवाहा है। Every shepherd eats his sheep. हर एक चरवाहा जो है वो अपने भेड़ को खाता है। In my grandfather's house, मेरे दादा के घर पर there were sheep. कुछ भेड़ थे On Christmas, we cut the sheep. और क्रिसमस के दिन हम एक भेड़ को काटते हैं We ate that sheep. और हमने उसे खा लिया। Every shepherd, लेकिन हर एक चरवाहा he will never die for the sheep. वो अपने भेड़ के लिए प्राण नहीं देता है। He will cut the sheep one day or the other. आज या तो कल उसे वो काटता ही है। Am I right? क्या मैं सही कह रहा हूं? That's how he lives. ऐसे ही वो जीता है। If a good rate comes, he will sell the sheep. अगर अच्छा दाम मिला तो उस भेड़ को बेच भी देता है, किसको बेचेगा? कसाई को ही बेचेगा. कसाई को बेच देता है। Today the world has no good shepherd. आज इस दुनिया में कोई भी अच्छे चरवाहे नहीं है, There is only one good shepherd. केवल एक ही अच्छा चरवाहा है, He is Jesus. जो यीशु है। He is Jesus. जो यीशु है। What he will do? और वो क्या करता है? He will die for the sheep. वो आपके लिए अपनी प्राण को देता है। There is no other way. और कोई रास्ता ही नहीं, There is no other way. और कोई रास्ता ही नहीं, There is no other shepherd. और कोई चरवाहा ही नहीं। There is only one shepherd. केवल एक ही अच्छा चरवाहा है, He is Jesus. वो यीशु मसीह है। He will take care of you. और वो आपको संभालेगा। That shepherd invites every one of us. और वो चरवाहा हम में से हर एक को न्योता देता है। I want you to make Jesus as your shepherd. और मैं चाहता हूं कि आप यीशु को अपना अच्छा चरवाहा बनाएं। You may be small or big. चाहे आप Jesus should become your shepherd. चाहे आप छोटे हो या बड़े हो, यीशु ही आपका अच्छा चरवाहा बनना चाहिए। You may be a student or a businessman. शायद आप एक विद्यार्थी हो या एक व्यापारी हो, Jesus should become your shepherd. यीशु ही आपका चरवाहा बने। You can be man or woman. Jesus should. शायद आप पुरुष हो या स्त्री हो, लेकिन यीशु ही आपका अच्छा चरवाहा बने। He is the only good shepherd. वो एकमात्र अच्छा चरवाहा है, There is no other shepherd. और कोई अच्छा चरवाहा नहीं है। In this earth, इस दुनिया there में, is no other shepherd. इस पृथ्वी में और कोई अच्छा चरवाहा नहीं है।